مسٹیریس لو پارٹ 1 جس کا آپ کے لیے تحریر کیا عروج خان نے. تو پھر جلدی سے چلتے ہیں ناول کی طرف. تاریک رات نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے تمام کاروباری زندگی کو جیسے روک دیا تھا. ویران سڑک پر گاڑی دوڑاتی وہ بار بار بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھ رہی تھی. اس کے تعاقب میں آنے والی گاڑی اب بھی اس سے چند میل کے فاصلے پر تھی. بارش گرج کے ساتھ چمکتے تو گاڑی میں بیٹھے نفوس کے چہرے ایک پل کو واضح ہوتے. وہ تینوں سیاہ لباس میں ملبوس تھے. لمبے بال اور ان کا زردی مائل سفید رنگ. ان میں سے ایک شخص نے چہرے پر ایک عجیب طرز کا ماسک لگا رکھا تھا. تیز بارش کی وجہ سے اس کی گاڑی سڑک پر بار بار پھسل رہی تھی جسے وہ بمشکل کنٹرول کیے ہوئے تھی. وہ رک نہیں سکتی تھی. کچھ آگے جا کر اس نے اچانک سے گاڑی کو موڑا اور ایک تنگ سڑک کا رخ کیا. تعاقب میں آنے والی گاڑی چونکہ بڑی تھی اور اس تنگ سڑک میں نہیں آ سکتی تھی، اسے لگا وہ بچ جائے گی. مگر اگلے ہی پل گاڑی رکتے ہی وہ تینوں لوگ گاڑی سے نکل کر اس کے تعاقب میں بھاگنے لگے. انہیں آتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی. پیچھے آنے والوں کی رفتار اس گاڑی کی رفتار سے بھی زیادہ تھی. اگلے ہی پل ان تینوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا. ماسک والا شخص جس نے سیاہ رنگ کا لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، وہ اس کی چلتی ہوئی گاڑی کے آگے بھاگتے ایک جھٹکے سے رکا اور پھر پلٹ کر گاڑی کے بونٹ پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا تو اچانک گاڑی کے پہیے چرچراہٹ پیدا کرتے رک گئے. اس کی طاقت بے مثال تھی. وہ خوف سے ارد گرد دیکھنے لگی. سامنے کھڑا سیاہ پوش اب گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل گاڑی کے بونٹ پر چڑھتا ونڈ اسکرین کی جانب بڑھا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھایا جو گاڑی کے ونڈ اسکرین سے آر پار ہوتا اس تک پہنچا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب ایک جھٹکے سے کھینچا اور ایک چھناکے سے ونڈ اسکرین ٹوٹی. مگر حیرت انگیز طور پر اسے کوئی چوٹ نہ آئی. اب اس کا اوپری وجود ونڈ اسکرین سے باہر اس شخص کی گرفت میں اس کے بہت پاس تھا. وہ آنکھیں موندے اس کی مہک کو محسوس کر رہا تھا. اٹس فیسینیٹنگ، عجیب کھردری آواز میں وہ بولا. بارش ان دونوں کو مکمل طور پر بھگو چکی تھی. اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی. وہ اس شخص سے 1 انچ کے فاصلے پر تھی. اس کے چہرے پر لگا ماسک بجلی کی چمک میں روشن ہوتا اسے خوفزدہ کر رہا تھا. اچانک اس کا ذہن معاف ہوا. پھر جو چیز اسے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کسی کو اپنے گال تھپ تھپاتے محسوس کیا. کوئی اسے پکار رہا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو وہ اس شخص کی باہوں میں سکڑی سمٹی ہوئی تھی. اب اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا، پھر بھی اس کا چہرہ واضح نہیں تھا. بارش تیزی سے برستی اسے بھی پوری طرح بھگو چکی تھی. مقابل کی پھسلتی نگاہوں کی تپش وہ اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی. اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنا چاہا تو اس کے اطراف کا منظر بدلا ہوا تھا. اسے مضبوطی سے جس شخص نے تھام رکھا تھا وہ کوئی اور تھا، اور اس کا تعاقب کرنے والے تینوں لوگ وہاں نہیں تھے اور نہ ہی اس کی گاڑی وہاں تھی. کچھ مزید غور کرنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اب کسی سڑک پر نہیں ہے بلکہ وہ کسی محل نما گھر میں ہے. مگر یہ بارش، اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا. اسے باہوں میں لیے شخص نے اسے خود میں بھیجتے جیسے اس کے جسم کی کپ کپی کو دور کرنا چاہا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامتے اپنی جانب موڑا. اوپن یور آئیز مائی لو، وہ گمبھیر سحر انگیز آواز میں گویا ہوا. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. یہ اس کی آواز کا جادو تھا کہ اسے اب اس سے خوف نہیں آیا. وہ اب اس کے بے انتہا قریب تھا. پھر وہ اس کی جانب جھکا. اس کے دل کی رفتار بڑھی. وہ ایک دم سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. او گاڈ! سینے پر ہاتھ رکھے وہ گہرے سانس لینے لگی. وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور اس کی لینڈ لیڈی روزی اس کے سر پر کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں گلاس تھا. اسٹیلا کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اور روزی کے ہاتھ میں موجود گلاس اس کی وجہ بیان کرنے کو کافی تھا. او گاڈ! یہ کیسا خواب تھا؟ اسٹیلا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑائی اور پھر اپنے ہونٹوں کو چھوا. اسٹیلا سنگل تھی. ایسا کچھ حقیقت تو دور خواب میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا. جو تمہارے شوق ہیں ان کے بعد ایسے ہی ڈریمز آئیں گے، روزی اپنے انڈین کرسچن انداز میں بولی.
लुक एट दिस, पूरा बेडरूम तुम्हारे इन सुपर नेचुरल पोस्टर्स और स्केचेस से भरा पड़ा है। तुम उनको सोचता है, उनको स्केच करता है, इसीलिए ऐसे ड्रीम्स तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। रात को सोते हुए उनको नहीं, गॉड को याद किया करो, ताकि तुम पुरसुकून नहीं सो सको। अब उठ जाओ, तुम्हारे इंटरव्यू का टाइम होने वाला है। जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। रोज़ी कहती कमरे से बाहर चली गई। स्टेला बेड से उठकर उस पोर्ट्रेट की जानिब आई जो रात ही उसने बनाया था, और वही तो उसके ख्वाब में आया था, उसका मसीहा बनकर। मगर वो 3 लोग, उसने वैसा तो कुछ स्केच नहीं किया था अब तक। वो खुद से सोचने लगी, शायद मैं आजकल वैम्पायर्स को बहुत स्टडी करने लगी हूँ। उसने खुद को जवाब पेश किया और बाथरूम की जानिब चली गई ताकि फ्रेश हो सके। आईने के सामने खड़े होते उसने अपने चेहरे पर नज़र दौड़ाई तो ख्वाब का आखिरी हिस्सा जैसे आईने में किसी फिल्म के जैसे चलने लगा। उसने बेसाख्त अपने लबों को छुआ। गेट अप ट्रिप्स चला। सर झटक कर वो बाहर की जानिब चली गई जहाँ रोज़ी उसका नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। आज उसका यहाँ आखिरी दिन था। कैलिफोर्निया के महंगे तरीन इलाके में बनी वो अरबों की मालियत की रिहाइश का रोज़वुड मैंशन बाहर से जितनी जदीद तर्ज तामीर लिए हुए थी, अंदर दाखिल होने पर उतनी ही पुरस्कार थी। जदीद व कदीम का ऐसा इम्तज़ाज जो आपको किसी और दौर में ले जाए। आंखों को हैरान कर देने वाले इस घर का मालिक अलाइजा इस वक्त मैंशन में वाक़ई अपने पसंदीदा हिस्से में मौजूद था, जहाँ बड़ा सा इंडोर तर्ज का स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के ऊपर एक और इर्द गिर्द शीशे की छत और दीवारें थीं, और बाहर लातादाद सब्ज़ा। वो ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर नजर आने वाले वसी और अरीज लॉन पर नज़र टिकाए किसी गहरी सोच में गर्क था। उसकी पुरस्कार अंबर रंग की आंखें, जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ने की सलाहियत रखती थीं, इस वक्त धूप में जगमगा रही थीं। क्या सोच रहे हो? उसका दोस्त डैनियल उसके पास आता उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वो बेहद हसीन था और ग्लास वॉल के पार से आती धूप में उसका खूबरू सरापा हीरे मोतियों की मानंद दमक रहा था। अगर कहा जाए कि खूबसूरती और कामयाबी में अलाइजा का कोई इंसानी नहीं था तो ये मज़ायका भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है? वो मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखने लगा। आई कांट रीड यू, डैनियल ने एतराफ़ किया। नो वन कैन, वो अपने मखसूस खुद पसंद अंदाज में बोला और शीशे के पास से हट गया। पर मुझे लगता है तुम अपनी तलाश के मुतालिक सोच रहे हो, डैनियल ने अंदाज़ा लगाया। वो गहरी जानलेवा मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई है। उसने कंधे उचकाते हुए मुकाबिल को हैरान किया और अपने कुछ फासले पर रखी आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। कब? बताया क्यों नहीं? डैनियल ने शिकवा किया। क्योंकि वो मेरी तलाश थी। उसने कंधे फिर से उचकाए। अच्छा ये लो। डैनियल ने हाथ में थामा एक गिलास उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर उसने लबों से लगाया। मीटिंग के लिए जाना है, डैनियल ने उसे याद करवाया। वो खासा बेजार हुआ। मैं आज पोर्टलैंड नहीं जाना चाहता था, कुछ सोचते हुए बोला। नेवर माइंड अलाइजा, तुम्हारे लिए रात को वापस आना मुश्किल नहीं है। डैनियल ने उसका एतराज़ हवा में उड़ाया और हाथ झल्लाता जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस पलट गया। जबकि अलाइजा हाथ में पकड़े मशरूब से लुफ्तंदोज़ होता एक बार फिर पहले वाली सोचों में डूब गया। वो 5 साल का बच्चा गैर मामूली सलाहियतें रखता था, मगर अपनी इन सलाहियतों और ताकतों की हकीकत से नावाकिफ़ था। उसकी माँ उसे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई थी। वो अपनी नानी के साथ एक छोटे से इलाके में रहता था। जब कभी वो अपनी उम्र के लोगों को देखता, वो अपनी नानी से अपने मुख्तलिफ होने की वजह पूछता था, मगर उसकी नानी उसे हमेशा गिफ्टेड कहकर टाल दिया करती थी। वो उसे हमेशा अपनी सलाहियतों को छुपा कर रखने का कहा करती, और कभी जो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहता तो उसकी नानी उसे डांटती और सज़ा देती थी, जो उसके लिए सज़ा नहीं एक चैलेंज ही हुआ करता था। वो दर्द महसूस नहीं करता था। उसके सोचने और समझने की सलाहियतें बहुत तेज़ थीं। 5 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से कई बड़े लोगों की ज़हानत का मालिक था। उसकी देखने, सुनने और महसूस करने की हसियात बहुत तेज़ थी।
وہ معمولی سے معمولی اور باریک چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی صلاحیتوں اور طاقتوں میں حیرت انگیز اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر چند ماہ کے بعد اس کی نانی اسے لے کر کسی دوسرے شہر منتقل ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں آنے والی جسمانی تبدیلیاں بھی غیر معمولی تھیں۔ اس کا اندازہ اسے خود بھی ہونے لگا تھا، اور فطری طور پر ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا استعمال کرنا بھی آ گیا تھا۔ وہ اسکول نہیں جاتا تھا، لیکن نانی اسے گھر پر ہی پڑھایا کرتی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ملنے اور کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دن بھر اپنے گھر میں چھپا رہتا تھا، البتہ رات کو جب ہر طرف سناٹا چھا جاتا تھا تو اسے اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ وہ رات میں باہر نکلتا تھا۔ رات میں اسے اپنا چھوٹا سا ٹاؤن اپنی سلطنت لگتا تھا، جہاں وہ جو جی میں آئے کر سکتا تھا، نہ کسی کے سامنے آنے کا ڈر اور نہ کسی کے دیکھ لینے کی فکر۔ ایسا 8 سال تک چلتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جسمانی طور پر ایک ٹین ایجر میں بدل چکا تھا اور لاتعداد غیر انسانی طاقتوں کا مالک بن چکا تھا۔ ایک دن وہ کسی کی نگاہوں میں آ گیا۔ اسے اپنے ارد گرد کسی غیر معمولی طاقت کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتا خود کو چھپا گیا۔ اس نے سیاہ رات میں ایک ہیبلے کو وہاں آتا اور ارد گرد کسی کی تلاش میں گھومتا دیکھا۔ وہ لگ بھگ اسی کی جیسی صلاحیتوں کا مالک تھا، مگر عمر اور دیکھنے میں وہ اس سے کافی بڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں گھومتا وہ سراپا اس وقت کسی کی تلاش میں تھا۔ جو خبر اسے ملی تھی اور جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا، اس کی ایک جھلک اس نے دیکھی تھی۔ سالوں بعد اسے یہ خبر ملی تھی، جس کی تلاش میں نہ جانے وہ کتنے سالوں سے تھا۔ آج ایک جھلک ہی اس خبر کی تصدیق کو کافی تھی۔ اسے اپنی تلاش مکمل کرنی تھی۔ وہ تاریک راتوں کے مسافر اس وقت ارد گرد گھومتا کسی کی تلاش میں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مقابل اسی کی طرح یا شاید اس سے بہتر خود کو مخفی رکھنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ نہیں ملا۔ اندھیرے میں ایک اور ہیبلا بجلی کسی تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ نہیں، پر مل جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے، مگر میں اس تک پہنچ نہیں پا رہا۔ ہو نہ ہو وہ یہی ہیں۔ وہ ہیبلا اب اندھیرے سے قدرے روشنی میں آیا تو درختوں کی بلندی میں چھپے اس وجود نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ لباس، لمبے بال، زردی مائل سفید جلد اور چمکتی لال آنکھیں۔ کچھ دیر ارد گرد دیکھنے کے بعد دونوں وجود جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کی موجودگی کے احساس کے زائل ہونے پر وہ چھلانگ لگاتا ان فلک بوز درختوں سے نیچے آیا، اور پھر باہر رہنے کا ارادہ ترک کرتے وہ گھر کو لوٹ گیا۔ واو، چیز آملیٹ! تھینک یو روزی، یو آر دی بیسٹ۔ میں یہ بریک فاسٹ بہت مس کرنے والی ہوں، وہ روزی کو گلے لگاتی کہنے لگی۔ کیا ہوا، کھاؤ نا۔ روزی نے اچانک اس کی خوشی کو افسردگی میں بدلتے دیکھا تو اس کی توجہ ناشتے کی جانب مبذول کروانا چاہی۔ یہ ایک ساتھ ہمارا لاسٹ بریک فاسٹ ہے، وہ دکھی انداز میں گویا ہوئی۔ نہیں، تم جب چاہے میرے پاس بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر کے لیے آ سکتی ہو۔ روزی نے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس انٹرویو کے لیے دکھی دل سے جائے۔ یہ پاسبل نہیں ہوگا روزی، یو نو دیٹ۔ اس نے رونی صورت بنائی اور ناشتے کی پلیٹ پر جھک گئی۔ دیکھو اسٹیلا، میں خود نہیں چاہتی تھی کہ تم یہاں سے جاؤ، مگر میں مجبور ہوں۔ روزی بھی افسردہ ہوئی۔ ڈونٹ بی سیڈ روزی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا تھا، اور پھر ڈیوڈ آپ کا بیٹا ہے، اسے یہاں آنا ہی تھا، اور میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اسٹیلا روزی کو افسردہ دیکھ کر اپنا موڈ بحال کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، پر یہاں سے جانا اس کی اپنی چوائس سے، اور اب اچانک سے یوں لوٹ آنا۔ روزی کو افسردہ دیکھ کر اسٹیلا کو شرمندگی ہوئی، جو اس کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی۔ اوکے روزی، نو مور سیڈنس۔ میں ایک اچھی سی نوکری کرنے والی ہوں، ایک پوش ایریا میں موو کرنے والی ہوں، اور کیا پتہ وہاں تمہیں تمہارا ڈریم مین بھی مل جائے۔ اسٹیلا کی بات درمیان میں رہی جب مین ڈور پر کھڑی ایک چلبلی سی لڑکی نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا۔ وہ سفید شرٹ اور جینس میں ملبوس تھی۔ کھایا پرفیکٹلی ان ٹائم، اسٹیلا نے نوالہ لیتے اپنی دوست سے کہا۔
जल्दी करो, यू आर गेटिंग लेट। सुना है मिसेस थॉमसन बहुत वक्त की पाबंद हैं। क्यों रोज़ी? काया ने रोज़ी से मिलते हुए कहा तो वो सर इस बात में हिला कर रह गई। रोज़ी एक इंडियन थी। शौहर की नागहानी मौत के बाद उसने बहुत मेहनत से अपने बेटे को पाला और अच्छी तालीम दिलाई। वो मिसेस थॉमसन, जो कि एक मालदार खातून थी, कि बड़े से घर में शुरू से एक केयर टेकर की जॉब करती थी। मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन के पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। अब वो 55 बरस की बेवा और हार्ट पेशेंट थी। इतने बड़े घर में वो अकेली घबरा जाती थी, इसलिए रोज़ी उनके लिए सहारा थी। मगर जब रोज़ी की अपनी सेहत नासाज हो गई थी, इसलिए उसके लिए नौकरी करना मुमकिन नहीं था। रोज़ी ने अपनी जगह एक दूसरी केयर टेकर को मिसेस थॉमसन के लिए अपॉइंट करवा दिया था। रोज़ी का बेटा डेविड और बहू जूलिया न्यूयॉर्क में मुकीम थे और अब अपनी माली मुश्किलात से तंग आकर उन दोनों ने वापस घर लौटने का फैसला कर लिया। रोज़ी का घर छोटा था, जिसमें एक कमरे में वो खुद होती थी और दूसरा कमरा स्टेला को पेइंग गेस्ट के तौर पर दिया था। मगर अब डेविड की वापसी पर रोज़ी को फिक्र लग गई थी कि वो स्टेला को कैसे यहाँ से जाने को कहेगी। इसी दौरान जो उसकी तन्हाई की साथी बन गई थी। इसी दौरान मिसेस थॉमसन की जानिब से रोज़ी को कॉल आई थी। उनकी मौजूदा केयर टेकर ये जॉब छोड़कर जा चुकी थी और जो नई केयर टेकर मिसेस थॉमसन ने हायर की थी, वो दिन में तो उनके पास आ जाती थी, मगर रात को उन्हें अकेले रहना पड़ता था। ऐसे में रोज़ी को स्टेला का ख्याल आया, क्योंकि इन दिनों स्टेला की नौकरी भी ख़त्म हो गई थी। रोज़ी ने इस सिलसिले में स्टेला से बात की थी। ऐसे स्टेला को एक अच्छी नौकरी और अच्छी रिहाइश मिल जाएगी और स्टेला के पास भी इस ऑफ़र को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आज रोज़ी के कहने पर वो मिसेस थॉमसन से मिलने जाने वाली थी। तुम जानती हो मिसेस थॉमसन को कैसे प्रेस करना है। बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुझे ये जॉब मिल जाए, फिर मैं उस आलीशान से घर में कुछ दिन रहने तो ज़रूर आऊँगी। स्टेला को थॉमसन मैंशन के सामने उतारते काया ने शोखे से कहा, और डे जॉब की बात कर लेना उनसे, क्योंकि दिन को तो उनकी केयर टेकर यहीं होती है, तो तुम दिन को फारिग बैठ कर क्या करोगी। काया ने उसे मशवरा दिया तो वो पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगी। अभी जाओ, मैं आधे घंटे बाद वापस आती हूँ तुम्हें पिक करने। मेक श्योर तुम इस अमीर बेवा को इम्प्रेस कर लो, और क्या पता तुम्हारे काम से खुश होकर वो अपनी अरबों की जायदाद तुम्हारे नाम कर दे। काया एक बार फिर ख्वाबों की दुनिया में खो गई थी। जब स्टेला ने उसके सर पर चपत लगाते उसे होश में लाया और सर नफ़ी में हिलाती अपना शोल्डर बैग लेती गाड़ी से निकल गई। दुआ करना उसकी कोई बिल्ली ना हो। काया ने हाँक लगाई तो दिल खोल कर खिलखिलाई थी। अगले ही पल उसे कोई जाना पहचाना सा एहसास हुआ। एक नज़र इर्द गिर्द देखती वो इस एहसास को झटकती अंदर चली गई। मिसेस थॉमसन के साथ तमाम उमूर तय करने के बाद वो शाम में ज़रूरी सामान के साथ वहाँ शिफ्ट होने वाली थी। मिसेस थॉमसन ने उसे डे जॉब की इजाज़त भी दे दी थी। उन्हें बस रात में अपने घर में किसी की मौजूदगी दरकार थी और स्टेला को रहने के लिए एक अच्छा और महफूज ठिकाना। वो मिसेस थॉमसन के साथ बात करने के बाद फ़ौरन बाहर आ गई, जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक काया उसकी मुंतज़िर होगी। वो बाहर आई तो काया बाहर नहीं थी, जिसने आधे घंटे में वापस आने का वादा किया था। स्टेला ने अपने फ़ोन से काया का नंबर मिलाया, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया। हेलो काया, कहाँ हो तुम? स्टेला ने पूछा। मैं बस पहुँच रही हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसलिए फंस गई। बस 10 मिनट में थॉमसन मैंशन के बाहर होंगी। फ़ौरन कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब उसे काया के आने का इंतज़ार था। वापस अंदर वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बाहर रुक कर इंतज़ार करना बेहतर समझा। थॉमसन मैंशन के वसी और अरीज़ यार्ड में उसे अजीब सरसराहट का एहसास हुआ था। तेज़ हवा का झोंका उसके आसपास महसूस हुआ तो वो एक झटके से पलटी, मगर वहाँ हर चीज़ जामद थी। वहाँ तो कोई पत्ता भी ना हिला था। तो ये हवा का झोंका कैसा था? और ये एहसास? उसने आंखें बंद करके कुछ देर खामोशी से कुछ सुनना चाहा। इससे कबल कि वो कुछ सुन पाती, काया ने उसके करीब ड्राइववे पर गाड़ी रोकते ज़ोर से हॉर्न बजाया तो वो उछली। क्राइस्ट! काया, तुमने डरा दिया। वो दिल पर हाथ रखते गाड़ी में बैठ गई। कैसी रही मिसेस थॉमसन के साथ मुलाकात? एज एक्सपेक्टेड, जवाब शान बेनियाजी से आया। वो काया के हमरा अपना सामान पैक कर रही थी।
اب یہ مت کہنا کہ تم اپنے یہ فضول سے پورٹریٹس بھی ساتھ لے کر جاؤ گی۔ کایا نے اسے اس کے پورٹریٹس اکٹھے کرتے دیکھ کر کوفت بھرے لہجے میں کہا، یہ فضول سے نہیں ہے، میری محنت ہے اور ان کو سیل کر کے میں کچھ کماتی بھی ہوں۔ اسٹیلا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کتنا کما لیتی ہو ان سے؟ صرف چند ڈالرز۔ کایا کا انداز سنجیدہ تھا۔ جتنا بھی کماتی ہوں ایٹ لیسٹ فضول تو نہیں ہے نا؟ اسٹیلا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی پینٹنگز ایک پاپ اپ شاپ پر بیچا کرتی تھی، کم ہی صحیح مگر ان سے وہ چند ڈالرز کما لیا کرتی تھی، اور اب جب کچھ وقت سے اس کی جاب ختم ہو گئی تھی تو انہی پینٹنگز اور اسکیچز سے اکٹھے کیے ہوئے پیسے ہی اس کے کام آئے تھے۔ پیکنگ اور کایا کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئی تھیں۔ 3 بجے واپسی کے بعد روزی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اسے 5 بجے تھامسن مینشن جانا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے لیے خطرہ ہے، اپنے محل نما گھر میں چکر کاٹتا وہ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کی تلاش جلد سے جلد مکمل کرو، مجھے وہ اپنے سامنے چاہیے۔ مگر ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ اس کی شناخت؟ ایک نے استفسار کیا۔ اس کی مہک، اس کی وہ دلکش مہک جو اسے سب سے الگ بناتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس وہ ہتھیار ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہمیں وہ ہتھیار ہی نہیں، وہ لڑکی بھی چاہیے، تاکہ ہم نہ صرف اپنا بچاؤ کر سکیں بلکہ اس لڑکی کی مدد سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ بھی۔ اس نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، اس کے ساتھی نے کہا اور باقیوں کو اشارہ کرتا اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے لمبے سیاہ چوغے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کایا اسے 5 بجے تھامسن مینشن چھوڑ کر اپنی جاب کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں ایوننگ کی شفٹ پر کام کرتی تھی۔ ہیلو مسز تھامسن۔ وہ اندر آئی تو مسز تھامسن کے ملازم نے اس کا سامان اس کے لیے مختص کیے گئے کمرے میں پہنچایا۔ ہیلو ینگ لیڈی، یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ تم پنکچل ہو، مسز تھامسن نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ بلوزی نے بتایا تھا کہ آپ کو پنکچل بندے بہت اچھے لگتے ہیں، سو اس نے وضاحت دی۔ تو پنکچل ہونے کے ساتھ ساتھ تم صاف گو بھی ہو، آئی لائک اٹ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی تو اسٹیلا بھی مسکرا دی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں فریش ہو کر تھوڑا ریسٹ کر لو، پیکنگ میں تھک گئی ہوگی۔ 7 بجے ڈنر ٹیبل پر میں تمہارا انتظار کروں گی، مسز تھامسن نے اسے کہا تو وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اچھا خوشگوار احساس ہوا۔ وہ کوئی معمولی کمرہ نہیں بلکہ کافی بڑا اور لگژری روم تھا۔ واؤ، یہاں تو میرے سارے پورٹریٹس بھی آرام سے فٹ ہو جائیں گے۔ میں کل ہی اپنے باقی کا سامان بھی یہیں لے آتی ہوں۔ کمرے پر نظر دوڑاتے جو پہلا خیال اسے آیا تھا وہ اپنے پورٹریٹس کا تھا۔ بلو اور گرے کنٹراسٹ میں سجا وہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ فوراً فون نکال کر اس نے کمرے کی تصویر لے کر کایا کو بھیجی تھی۔ اسے لگا تھا کہ مسز تھامسن اسے کسی سرونٹ کوارٹر یا عام سے کمرے میں رہنے کو کہیں گی، مگر یہ کمرہ دیکھ کر تو اسے حقیقی معنوں میں حیرت ہوئی تھی۔ ایک کیئر ٹیکر کے لیے اتنا شاندار کمرہ! کاش مسز تھامسن کا کوئی ینگ اینڈ ڈیشنگ بیٹا ہوتا۔ کایا کا رپلائی اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ خیر، ڈیشنگ اور ہینڈسم نہ بھی ہوتا، بس مسز تھامسن کا بیٹا ہوتا۔ ایک اور پیغام دیکھ کر وہ سر جھٹک کر فریش ہونے باتھ روم کی جانب چلی گئی، جو کمرے کی طرح ہی شاندار تھا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ باتھ روم ٹب میں بیٹھی خود کو پرسکون کرتی رہی اور اس کا ذہن بھٹک کر اپنے ماضی کی جانب چلا گیا۔ کچھ اچھی اور کچھ دلسوز یادیں اس کے ذہن پر قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور باتھ روم کی بڑی سی کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی، جس نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ وہ باتھ روم ٹب سے نکل کر اپنے جسم کو باتھ روم میں لپیٹتی مخالف سمت کی لگی کھڑکی کی جانب آئی تو تازہ ہوا کے جھونکوں نے اسے ٹھنڈک کا احساس فراہم کیا۔ سلیو لیس باتھ روب سے جھلکتے اس کے دودھیا بازوؤں پر ٹھنڈ کے باعث چھوٹے چھوٹے دانے ابھرنے لگے تھے۔ وہ بازو لپیٹ کر ایک تفصیلی نگاہ ارد گرد ڈال رہی تھی جب نگاہ عین سامنے بنے اس عالی شان اور محل نما گھر کے ٹیرس پر کھڑے ایک وجود پر جا پڑی تھی جو شاید اسی جانب متوجہ تھا، مگر وہ فاصلے سے اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سر جھٹک کر کھڑکی بند کرتی پلٹ گئی۔ الائجا اس وقت اپنے مینشن کی ٹیرس پر کھڑا فون کان سے لگائے بات کر رہا تھا۔
जब अचानक उसने किसी एहसास के तहत सामने बने थॉमसन मैंशन की जानब निगाह दौड़ाई तो सामने ही खुली खिड़की में खड़ी लड़की को देखकर कुछ पल को वो ठिठक गया। वो शायद अभी नहा कर आई थी। भीगे बाल और और बाथरोब में लिपटा उसका वजूद एलाइजा को पूरी तरह मुतवज्जा कर गया था। कुछ लम्हे वो इर्द गिर्द से बेनियाज उसे ही देखता रहा, यहाँ तक कि वो लड़की खिड़की बंद करके पलट गई तो एलाइजा को होश आया। गहरा सांस लेता वो वापस से फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुआ, जहाँ दूसरी जानिब मौजूद हस्ती उसे पुकारती जा रही थी। रात मिसेस थॉमसन के साथ डिनर और कुछ देर बातें करते रहने के बाद मिसेस थॉमसन को उनके कमरे में अद्वैयात देकर वो अपने कमरे में चली आई थी। लिबास तब्दील करके अपनी स्पैगेटी टॉप और ढीले ढाले ट्राउज़र में वो ईजी हो गई। कमर तक आते बालों को लपेट कर जोड़े की शक्ल दे दी, जिससे उसकी लंबी सुराहीदार गर्दन मज़ीद नुमायाँ हो गई। अलबत्ता माथे पर कटे बाल और उनसे झांकती उसकी ग्रे आँखें उसे बहुत जाज़िब नज़र बनाती थीं। रोज़ी के साथ वो लेट नाइट बातें करने की आदी थी, मगर यहाँ मिसेस थॉमसन जल्द सो गई थीं, इसलिए इस वक्त उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ सोचकर उसने अपने सामान में से कैनवस निकाला। उसका इरादा कुछ स्केचिंग या पोर्ट्रेट्स बनाने का था। वो फारिग वक्त में यही काम किया करती थी। वो बचपन से ही पेंटिंग के बेहद शौकीन थी, फिर चाहे वो पेंटिंग किसी भी चीज़ की हो, और कुछ अरसे से उसका इंटरेस्ट सुपर नेचुरल और अफसानवी किरदारों में हो गया था। सामान निकाल कर उसने कैनवस सेट किया और फिर सोचने लगी कि उसे क्या बनाना चाहिए, मगर आज पहली बार उसके जहन में कोई तस्वीर नहीं उभर रही थी। एक के बाद दूसरा ख्याल आता, मगर कोई वाज़ेह नक्श उसके जहन में उभर नहीं रहा था, जिसे वो कैनवस पर उतार सके। गहरा सांस भरकर वो खिड़की की जानिब आई और उसने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा एक बार फिर उसे छूकर ठंडक का एहसास करवा गई। एक बार फिर उसे बाहर किसी अजीब सी हलचल का एहसास हुआ। वो जब से यहाँ आई थी, मैंशन का ये वसी लॉन उसे अजीब एहसास से दो चार कर रहा था, और अब भी वो बेख्तियारी की कैफियत में घिरी बाहर की जानिब भागी। मेन डोर से बाहर निकलकर उसने लॉन में नज़र दौड़ाई। नीम तारीकी में उसे फिर से वही एहसास हुआ था, यूं जैसे कोई तेज़ी से वहाँ से भाग गया। उसकी जहन में अपने ख्वाब में ताक़ुब करने वाले वो अजीब से 3 शख्स आए, मगर ना जाने क्यों उसे डर नहीं लगा। वो अपनी माँ की ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे ख्वाब देखा करती थी, और फिर कुछ सालों से उसे इन ख्वाबों का सिलसिला थम गया था, मगर गुज़िश्ता रात फिर से वो ख्वाब आया था, और पहले से बहुत वाज़ेह था। वो जानती ना थी कि ये सब बिला वजह ना था। सरसराहट की आवाज़ बढ़ने लगी। वो मुतजस्सिस सी आगे बढ़ रही थी जब अचानक उसके पाँव में चुभन का एहसास हुआ। उसे तब होश आया कि वो बिना जूते पहने बाहर निकल आई है। वो वहीं बैठ गई और अपने अंगूठे में छुपा वो कांटा खींच निकाला। उसके खून के चंद कतरे ज़मीन पर गिरे तो इर्द गिर्द होती सरसराहट में मज़ीद शिद्दत आई थी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। मुझे अंदर चले जाना चाहिए। उसे अजीब घबराहट का एहसास हुआ तो वो जैसे ही अंदर जाने के लिए पलटी, कोई चीज़ तेज़ी से उसके वजूद से टकराई और अपने साथ घसीटते हुए आगे ले गई। सेकंड्स के हज़ारवें हिस्से में उसने खुद को दीवार के साथ सख्ती से लगे हुए पाया, और उसके पीछे कोई वजूद मौजूद था जो उसे सख्ती से दीवार से पिन किए हुए था। वो कुछ समझ पाती इससे कबल ही उसे अपने दोनों बाजों पर किसी के सर्द हाथों का लम्स महसूस हुआ, जो अब उसके बाजुओं पर सिरकता उसके हाथों तक जा रहा था। यू स्मेल सो गुड। एक गंभीर मगर खुरदरी आवाज़ उसके कानों से टकराई, जिसने उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ा दी। तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। उसके बालों की खुशबू सूंघता वो मज़ीद गोया हुआ। उसकी आवाज़ शैला के दिल की रफ्तार बढ़ा रही थी। कौन हो तुम? वो बमुश्किल इतना ही बोल पाई थी। एक वहशी दरिंदा जो सारी दुनिया के लिए एक सफाक कातिल है, मगर तुम्हारे लिए एक फरिश्ता। उसकी गर्दन को अपने लम से बहकाता वो उसे बेखुद कर रहा था। अगले ही पल किसी के कदमों की चाप ने इस लम्हे के फंसों को तोड़ा था और स्टेला झूल कर अपने पीछे मौजूद वजूद की बाहों में समा गई। उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने कमरे में पाया। वो अपने बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी और उसका वजूद कंफर्टर से ढका हुआ था। वो एक झटके से उठ बैठी। कुछ देर कबल का मंजर उसके जहन में फिर से ताज़ा हुआ।
وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ حقیقت تھی یا اس کا کوئی خواب۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ باہر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں گئی تھی، تو پھر وہ سب کچھ جو اس نے محسوس کیا اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس نے اپنے وجود سے کمفرٹر ہٹایا اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھا، جہاں زخم تو دور، چبھن تک کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کوئی خواب نہیں تھا۔ اپنے بازو اور گردن پر اسے اب بھی وہ انجانا مگر دل فریب لمس محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں پر کسی زخم کا نہ ہونا اسے عجیب الجھن میں ڈال گیا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ایک بار پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا تو کینوس پر لگا ہوا کاغذ ہوا کی وجہ سے پھڑپھڑانے لگا۔ بیڈ کی دوسری جانب پڑے کینوس کو دیکھتے اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، جس پر موجود اسکیچ دیکھ کر اس کے رونگٹے صحیح معنوں میں کھڑے ہو گئے۔ اس اسکیچ میں وہ تھامسن مینشن کے لان میں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک شخص موجود تھا جس کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پائی، مگر وہ شخص اسے ویسے ہی تھامے ہوئے تھا جیسے کچھ دیر قبل اسے محسوس کیا تھا۔ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ خود سے پوچھنے لگی۔ خوف اور الجھن کی ملی جلی کیفیت نے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا۔ کیا اس مینشن میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ مگر ایسا ہی خواب تو میں نے روزی کے گھر پر بھی دیکھا تھا۔ رات اسے انہی سوچوں کی مٹبھیڑ میں گزار دی۔ اسٹیلا کی مہک اسے تب سے بے چین کیے ہوئے تھی جب سے اس نے اسے پہلی بار ہائیکنگ کرتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ وہاں گئی تھی اور اس کی نظروں میں آ گئی۔ اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے اس کے آس پاس ہی رہتا۔ اسٹیلا کو اس بات کا احساس نہیں ہوا، مگر اب اس کی بے چینی میں جو شدت آئی تھی اس کی وجہ سے اسٹیلا کو اس کی موجودگی کا ادراک ہونے لگا تھا۔ رات بھی اس کی مہک اسے تھامسن مینشن تک لے آئی تھی اور پھر اسٹیلا نے اس کے احساس کو محسوس کرتے اس کی جانب بڑھنا چاہا جب اسے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، اور یہ اس کے لیے آخری حد ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل خود پر سے اختیار کھوتے اس نے اپنے اور اسٹیلا کے درمیان کا پردہ ہٹاتے اپنی قربت سے اسے اپنا احساس کروانا چاہا۔ اسٹیلا کا قرب اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر اور اسے محسوس کرنا چاہتا تھا جب کسی کی موجودگی کے باعث اس نے اسٹیلا کے ذہن پر نیند طاری کر دی اور اسے اس کے کمرے تک لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اپنی طاقت کا استعمال کرتے اس نے اسٹیلا کے پاؤں کا زخم ٹھیک کر دیا اور اس کے قریب جاتے اس کی مہک کو ایک گہری سانس لیتے اپنے اندر اتارنے کے بعد اس کی نگاہ کینوس کی جانب اٹھی تھی، جہاں خالی کاغذ کو اس نے اپنی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اگلے ہی پل کچھ دیر قبل کا سارا منظر اس کاغذ پر چھپ گیا۔ یہ اس کی کوشش تھی کہ اسٹیلا اس لمحے کو فراموش نہ کرے۔ ابھی اسے وہاں سے جانا تھا کیونکہ اس کی یہاں موجودگی اسٹیلا کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، خاص کر تب جب اسٹیلا کی موجودگی میں وہ خود پر سے اختیار کھونے لگتا تھا۔ وہ لڑکی یہاں ہے۔ وہ جیسے اسٹیلا کے کمرے کی کھڑکی سے باہر آیا، سامنے شعلے ٹپکاتی لال آنکھیں لیے کوئی اسے گھور رہا تھا۔ ہاں، وہ اسی کے انداز میں جواب دیتے اسے اپنے ساتھ لیے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ وہ ہمارے لیے کتنا خطرہ ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ خود کو اسی کی آہنی گرفت سے آزاد کروا کر وہ بلند آواز میں دہاڑا۔ نہیں، اسے تو خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ اسٹیلا کی معصومیت اور بے خبری کو سوچتے اس نے مبہم لہجے میں کہا۔ مطلب وہ اپنی طاقت سے انجان ہے؟ وہ کیا کیا کر سکتی ہے اسے اس کا اندازہ نہیں ہے؟ زبردست، تو تم اس سے ہماری شکست کی وجہ کو دور کر سکتے ہو، وہ ہتھیار واپس حاصل کر سکتے ہو۔ وہ متجسس انداز میں گویا ہوا۔ وہ میں دیکھ لوں گا، مگر تم اس سے دور رہو گے۔ اسے ایک آنچ بھی آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور اسے صرف ایک دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اپنی دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھتا سخت لہجے میں کہنے لگا۔ کیا پیار کر بیٹھے ہو اس سے؟ یہ مت بھولو کہ تم کون ہو، اور وہ لڑکی تمہاری دشمن۔ مقابل نے بھی غصے سے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کیا کر بیٹھا ہوں اور کیا کرنے کا سوچ رہا ہوں وہ تمہارا سر درد نہیں ہے۔ میں اپنا راستہ بنانا اچھے سے جانتا ہوں اور اپنے ارادوں پر ڈٹے رہنا بھی۔ میری بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا کر رکھنا۔ اسے ایک کانٹا بھی چبھا تو تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اسے وہاں سے جانے کا حکم صادر کر چکا تھا۔ اب اسے اسٹیلا کی یہاں موجودگی کو اپنے لوگوں سے چھپا کر رکھنا تھا، مگر یہ خبر وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی، اور شکاری نے اپنے شکار کی تیاری کر لی تھی۔
गुड मॉर्निंग मिसेस थॉम्सन, कैसी गुजरी आपकी रात? स्टेला फ्रेश होती बाहर आई जहाँ वो ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी। बहुत अच्छी। और तुम्हारी पहली रात कैसी गुजरी? मिसेस थॉम्सन ने मुस्कुराकर इस्तफसार किया तो उसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग आंग गुजार जिन्हें वो छुपा गई। बहुत अच्छी। खुद को कंपोज करती उनकी जानिब बढ़ी थी। वेरी नाइस। चलो आओ नाश्ता करने, इसके बाद मैं तुम्हें मेंशन का एक विजिट दूंगी। अब तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के बारे में तुम्हें सब मालूम होना चाहिए। मिसेस थॉम्सन ने कहा तो उसने एक निगाह उस बड़े से हॉल पर दौड़ाई। थॉम्सन मैंशन हकीकी मायनों में उसकी सोच से भी बड़ा था और इतने बड़े घर में एक अकेली खातून का तन्हा रहना और घबराहट का शिकार होना आम बात थी। नाश्ते के बाद मिसेस थॉम्सन उसे अपने मैंशन का एक चक्कर लगवा चुकी थी। इतने बड़े मैंशन में अक्सर कमरे खाली थे, मगर उनकी सफाई और देखभाल बाकायदगी से हो रही थी। मैं सोच रही थी मिसेस थॉम्सन कि आप इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती हैं। मेरा मतलब है कि आप इसके बदले में एक छोटा घर भी ले सकती हैं जहां आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। ये इतना बड़ा घर और ये तन्हाई इंसान के हवासों पर सवार होकर उसे नींद दीवाना कर देती है। मैं तो आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ जो इतने सालों से इस किले में तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं। स्टेला ने इर्द गिर्द देखते कहा तो वो अफसरदगी से मुस्कुरा दी। ये थॉमसन मैंशन मेरे प्यार, मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी है। हम दोनों ने एक साथ बहुत से ख्वाब देखे थे, इस घर में अपने बच्चों के साथ एक हंसी खेलती ज़िंदगी गुजारना, पर वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था। थॉमसन के चले जाने के बाद मैं चाहकर भी खुद को इस घर से दूर नहीं कर पाए। मिसेस थॉमसन के लहजे में एक आश थी, महरूमियत का एहसास था। आई एम सॉरी मिसेस थॉमसन, अगर मेरी बातों ने आपको अफसरदा किया है। मैं तो बस इतने बड़े घर को देखकर ये सोच रही थी कि एक अकेली औरत और इतना बड़ा घर। खैर, अब मैं आ गई हूँ तो आपको तन्हाई का एहसास नहीं होने दूंगी। वो पल में शौक हुई तो मिसेस थॉमसन नरमी से मुस्कुरा दी। हाँ, और ऐसा करना, जब तुमने शादी कर ली तो अपने शौहर को यहीं ले आना, और फिर तुम्हारे बच्चों को भी मिसेस थॉमसन अपनी औलाद की तरह पालेंगी और उन्हें तन्हाई का एहसास नहीं होगा। काया अगर यहाँ होती तो यकीनन इस मौके पर वो यही बात करती। स्टेला मुस्कुरा दी। मिसेस थॉमसन से बातों बातों में उससे अपने लिए एक जॉब तलाश करने के लिए बाहर जाने की बात की थी और उसका ये मसला भी उन्होंने झट हल कर दिया। तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैं किसी को जानती हूँ जिसे अपने लिए एक सेक्रेटरी चाहिए, और अगर मैं कहूँगी तो वो इनकार नहीं करेगा। वो बहुत स्वीट लड़का है और सबसे अहम बात, रहता भी यहीं सामने है। ये इस सामने वाला रोज़वुड मैंशन उसी का है और ज़्यादातर काम भी वो घर से ही करता है। तुम्हें मसला नहीं होगा, वो बता रही थी, और स्टेला के जहन में टेरेस पर खड़ा वो शख्स घूमने लगा जिसे उसने कल शाम में देखा था। मैं बात करती हूँ डैनियल से, तुम फिक्र मत करो, मिसेस थॉमसन ने उसे तसल्ली दी। जी। स्टेला फ़कत इतना ही कह सकी। उसकी सोचों के सारे धागे रोज़वुड मैंशन में खड़े उस शख्स से जुड़ने लगे जिसका नाम मिसेस थॉमसन ने डैनियल बताया था। एक भीगी रात में जब बाहर बारिश जोरों पर थी और बादल अपना कहर बरसाते, तो साथ ही बिजली की चमक एक लम्हे को तारीकी को ज़ायल करके फिर छुप जाती। मिसेस थॉमसन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो रात देर तक उनके पास बैठी बातें करती रही थी। रात 11:15 बजे वो मिसेस थॉमसन को उनके कमरे में अद्वियात देकर बाहर आई। राहदारी से गुजरते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सीढ़ियों से अभी कोई साया सा ऊपर की जानिब गया है। अपने अंदर उठते तजस्सुस को सुलाती वो अपने कमरे की जानिब जाने ही लगी थी जब उसे एहसास हुआ किसी ने सरगोशीनुमा आवाज़ में उसे पुकारा था। एक खौफ की लहर उसके वजूद में दौड़ी थी। कुछ रोज़ कबल हुआ वाक़या उसे मनोवन याद था। स्टेला को एक बार फिर वैसा ही एहसास हुआ, उसी वजूद की मौजूदगी, और फिर जैसे किसी ने उस पर अपना सहर ठोक दिया हो। वो ऊपर नज़र जमाए किसी शहर में जकड़े आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। वो जो ऊपर की जानिब जा रही थी, ठंडक का एहसास बढ़ रहा था। वो अपने नाइट ड्रेस में ही मलबूस थी। उसे जैसे इर्द गिर्द की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस बादलों की गरज चमक और चमकती बिजली। ऊपर का हिस्सा तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, यूं जैसे उसकी मंजिल बहुत वाज़ेह थी। वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो ऊपर का पूरा हिस्सा लातादाद मोमबत्तियों से सजा हुआ था।
शाला ने बेयकीनी से इर्द गिर्द देखा। रात के पहर ऐसी सजावट। सुबह जब वो मिसेस थॉम्सन के साथ यहाँ आई थी तब तो ये हिस्सा बिल्कुल वीरान था, और अब की रोशनियाँ और खुशबू, कुछ तो गड़बड़ थी। वो जैसे ही पलटने लगी थी, सामने दीवार पर अपनी तस्वीर देखकर वो चौंक गई। उसकी ये तस्वीर तो उस दिन की थी जब वो काया के साथ हाइकिंग के लिए गई थी, मगर उस दिन उसने कोई तस्वीर नहीं ली थी, और उस दिन के बाद उसने कभी हाइकिंग ना जाने का अहद किया था। वो तस्वीर उस वक्त की थी जब वो एक मुश्किल रास्ते से गुजरती हुई काफ़ी खौफज़दा थी। सामने लगी तस्वीर कैमरे से नहीं ली गई थी, बल्कि हाथ से बनाई गई तस्वीर थी, जो उस वक्त उसके दिल में मौजूद हर जज्बे की अक्कासी उसके चेहरे से करती थी। स्टेला को हैरत हुई थी। जिस खौफ का इजहार उसने काया से भी नहीं किया, उस खौफ का अक्स इस तस्वीर में मौजूद था। वो बिना पलक झपके उस तस्वीर को देख रही थी। उस रोज़ के बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला था। उसकी नौकरी का अचानक ख़त्म होना, डेविड ना लौट आना, और उसका रोज़ी के घर से यहाँ आना। वो सोचों में मगन थी जब अचानक पीछे से एक बार फिर सरगोशी नुमा आवाज़ में कुछ अल्फाज उसकी समातों तक पहुँचे थे। हैप्पी बर्थडे स्टेला। स्टेला को हैरत हुई। आज वाकई में उसकी सालगिरह थी, मगर आज तक रोज़ी और काया के अलावा कभी किसी ने उसे बर्थडे विश नहीं किया था। खुद वो भी अपनी सालगिरह को इतनी अहमियत नहीं देती थी, क्योंकि उसके नज़दीक ये गैर ज़रूरी त्यौहार था, इसलिए कभी किसी पार्टी या जश्न का इंतज़ाम उसके लिए नहीं किया गया। मगर आज हुए ये इंतज़ाम देखकर आज हुए ये इंतज़ाम के पीछे कौन था वो नहीं जानती थी और न समझ पाई थी, मगर इस समय उसे खौफ नहीं आया था, वो बस हैरान थी। कौन हो तुम? उसने इर्द गिर्द देखते पूछा। एक वहशी दरिंदा जो सारी दुनिया के लिए एक सफाक कातिल है, मगर तुम्हारे लिए एक फरिश्ता। एक बार फिर उसे अपने पास वही जिस्म में बिजली दौड़ा देने वाली आवाज़ आई। वैसे ही अल्फाज उसके रोंगटे खड़े कर गए थे। हिम्मत करके उसने पलटना चाहा, जब उसे अपने कंधों पर एक बार फिर वही लम्स महसूस हुआ। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वही आवाज़ उसे अपने कानों के बहुत पास सुनाई दी, और उसकी सांसों का लम्स भी वो महसूस कर रही थी। वो आंखें मूंद गई, फिर हिम्मत करके पलटी तो पीछे खड़ा वजूद भी उसको थामे हरकत में आया था। पलटने पर स्टेला की निगाह उस वजूद पर तो नहीं, मगर सामने टेबल पर पड़े एक बड़े से केक पर पड़ी, जिस पर हैप्पी बर्थडे स्टेला लिखा हुआ था। वो बेज़बान सी होती उस केक की जानिब बढ़ी। फिर उसे महसूस हुआ कि वो वजूद उसे अपने हसान में लिए उसका हाथ थाम कर टेबल पर पड़े चाकू की जानिब ले गया, और चाकू उठाकर स्टेला का हाथ उस केक की जानिब आया। उसने जैसे ही केक काटा तो उसके कानों में हैप्पी बर्थडे टू यू के अल्फाज गूंजे, और अपनी गर्दन पर उसे किसी के लबों का एहसास हुआ। वो चौंक कर पलटी तो वहाँ कोई नहीं था, मगर उसकी गर्दन दहकने लगी थी। कौन हो तुम? वो घबरा कर फिर से पूछ बैठी। जान जाओगी? उसे एहसास हुआ कि अब की बार वो आवाज़ उसके बहुत पास, उसके बिल्कुल सामने है, जैसे वो देख नहीं पा रही, मगर उसका एहसास उसे अपने बहुत पास महसूस हो रहा था। स्टेला ने एक चंद कदम पीछे की जानिब लेने चाहे जब उसे अपनी कमर के गिर्द एक मजबूत हसार महसूस हुआ। फिर कुछ देर बाद स्टेला को लगा कि वो नामालूम वजूद उसका हाथ थामे अब पास पड़ी चम्मच से थोड़ा सा केक लेता उसके मुंह की जानिब बढ़ा गया। स्टेला ने बेसाख्ता केक का टुकड़ा मुंह में लेते ही निगल लिया, और अगले ही पल वहाँ मौजूद हर चीज़ जैसे गायब हो गई। ना मालूम, ना वहाँ कोई मोमबत्ती थी, ना कोई केक, और ना ही उस वजूद की मौजूदगी का एहसास। बस उसकी गर्दन और चेहरे पर उसकी सांसों का पुरहिद्दत लम्स अब भी जिंदा था। वो थॉमसन मेंशन के सेकंड फ्लोर पर तन्हा खड़ी थी, और बाहर होती गरज चमक अब भी वैसे ही शिद्दत से हो रही थी। वो घबरा कर फौरन नीचे की जानिब भागी और अपने कमरे में बंद हो गई। ओ गॉड, ये सब क्या था? अपनी गर्दन को छूते उसने खुद से सवाल किया। क्या मैं इमेजिन करने लगी हूँ? मगर मेरे मुंह में केक का जायका अब भी मौजूद है, और मेरे वजूद पर ये लम्स। वो आईने के सामने चलती हुई आई तो उसे अपने होठों के पास कुछ क्रीम लगी नजर आई, जो शायद केक का टुकड़ा खाते वक्त लगी होगी। उसने आहिस्ते से वो क्रीम अपनी उंगली की पोर पर लेकर देखी तो वो उसका वहम नहीं, हकीकत था। और फिर वो सब अचानक गायब कैसे हो गया? वो नासमझी से बेड की जानिब आई, जब एक बार फिर नजर अपने कैनवस पर पड़ी थी, और कुछ देर कबल वाला वो मंजर एक बार फिर कैनवस पर बना उसे हैरान कर गया था। ये तो साबित हो गया था कि वो उसका ख्याल या वहम नहीं था,
मगर ये सब हो क्यों रहा था और कौन था जो ये सब कर रहा था? तस्वीर में मौजूद वो वजूद उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए जैसे उसे महसूस कर रहा था। स्टेला को फिर से वो लम्हा याद आया तो उसके वजूद में एक सरसराहट सी हुई। कितनी ही देर वो उस अक्स को देखती रही। आज दूसरी रात थी और दोनों बार उसके साथ ऐसे वाकयात पेश आए थे जो हकीकत होकर ख्वाब जैसे महसूस होते थे या फिर ख्वाब होकर हकीकत का गुमान देते थे। वो इन्हीं सोचों में थी जब काया की कॉल उसके फ़ोन पर आई थी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि स्टेला से मिल नहीं सकी थी, मगर स्टेला को बर्थडे विश करते उसे एहसास हुआ कि स्टेला कुछ परेशान है। क्या हुआ स्टेला? काया ने पूछा। काया, मेरे साथ बहुत अजीब सूरत हाल पेश आ रही है। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? प्लीज़, आई नीड यू। स्टेला की आवाज़ में मौजूद बेचैनी काया को कुछ गैर मामूली होने का इशारा कर रही थी। मैं आती हूँ कल, डोंट वरी। काया ने उसे तसल्ली दिलाते उसे कुछ भी ना सोचे और पुरसुकून रहने को कहा। फ़ोन बंद करते वो लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मगर कुछ ही देर में उस पर कुनूत की तारी होने लगी और वो गहरी नींद में डूब गई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था माई लव। स्टेला के सो जाने के बाद कोई उसके सिरहाने आन बैठा। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था, तुम्हारी इस सालगिरह को तुम्हारे लिए ख़ास बनाना चाहता था। मगर तुम्हारे पास जो हमें महसूस करने की ताकत है वो तुम्हें हर बार परेशान कर देती है। मगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बस इसीलिए उस समय मैं तुमसे दूर हो गया था। मैंने अपनी ताकत से तुम्हारी नज़रों पर पर्दा डाल दिया था कि मैं या मुझसे मुंसलिक कोई चीज़ तुम्हारी नज़रों के सामने ना आए। अगर वो सब वहाँ रहता तो तुम उन चीज़ों को देखती और महसूस करती। तुम्हें कितना बेचैन होता है इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। मेरी मजबूरी है मेरी जान कि मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता जब तक मैं ये ना जान लूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अपनी हकीकत मैं तुम पर कैसे आश्कार कर सकता, पर यह वादा है तुम्हें खुद से अपने ही जैसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। वो दहकती नज़रों से उसके सरापे को निहारता उससे मावे गुफ्तगू था। तुम्हारा ये हुस्न क्या कर सकता है, तुम्हें इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है। स्टेला के चेहरे को नरमी से छूते वो कहने लगा और फिर कंफर्टर से उसके वजूद को ढाँप दिया। वो लड़की खुद से इतनी बेनियाज थी तो उसे बुरी तरह मदहोश कर देती थी। अगर वो जान जाए कि वो मुकाबिल पर क्या असर डालती है तो वो तो शायद उसकी दुनिया को तबाह कर दे, क्योंकि उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वो खुद भी ना वाकिफ थी। वो रात वहीं बैठा उसे निहारते रहना चाहता था, मगर इस वक्त उसे वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा देर यहाँ रह नहीं सकता था। स्टेला की हिफाजत के लिए उसे फिल वक्त स्टेला से दूर जाना था। वो 15 साल लड़का जो एक मुकम्मल और खूबरू मर्द की सूरत में ढल चुका था, आंखों को हैरान करता उसका सरापा किसी आम इंसान जैसा तो बिल्कुल ना था। वो इस वक्त आंखें मूंदे उस वीराने में बैठा हुआ था जब उसे फिर से उस वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ जो गुज़िश्ता चंद सालों से उसकी तलाश में था। मगर अब उसने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वो उसका मुकाबला करने की ताकत अपने अंदर रखता था। वो खुद उसके सामने जाकर उससे अपने सवालों के जवाब चाहता था। बहुत ढूंढा है मैंने तुम्हें। वो गुर्राती आवाज़ और दहकती निगाहों से उसको देखता उसकी जानिब आया। अपनी औलाद को यूं छोड़कर जाने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो बिना पलटे हुए कहने लगा, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ? हैरत से पूछता वो तेजी से आगे बढ़ता उसके सामने जा बैठा। महसूस कर सकता हूँ जिन रगों में मेरी माँ का दहकता खून होना चाहिए था, वो रगें तुम्हारे सफ़ाक एहसास से सर्द पड़ गई हैं, और वैसा ही सर्द महर मेरा दिल हो गया है। नफरत आमेज लहजे में गोया हुआ। मैं नहीं जानता था, क्या नहीं जानते थे, कि जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद एक जान को इस दुनिया में लाने के लिए दूसरी जान को अपनी जान देनी होगी। वो दुरुस्तगी से उसकी बात काटता हुआ बोला, मैं जानता हूँ मैं गलत था। अपनी ताकतों और बर्तरी के दम पर मैं किसी भी बेबस इंसान पर अपना तसल्लुत जमा कर अपने अंदर वो सुकून महसूस करता था जो मुझसे सालों कबल छीन लिया गया था। मैं भी एक आम इंसान था, मगर इंसान के दर्द को समझ नहीं पाए। वो निगाह फेरते हुए कहने लगा, मुझे मेरी गलती का एहसास है बेटा। जो खुशी मुझे एक आम इंसान होते हुए हासिल नहीं हुई, जब मुझे उस खुशी का इल्म हुआ तो तुम जानते हो मुझे लगा मैं फिर से जी उठाऊं। मेरे सर पड़ते जज्बात में फिर से हिद्दत पैदा हो गई है। 10 साल से तुम्हारी तलाश में था। वो मुल्तजी अंदाज में उससे गोया हुआ। उसे देखकर लगता नहीं था कि ये वही सफ़ाक हस्सी है जिसके कहर से न जाने कितने लोग कांपते थे।
जो कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला चुका था, जो अपनी तलब के लिए किसी को भी मसल देता था। वो खुशी आपको अब भी नहीं मिलेगी। वो कतरे नरम पड़ा। मेरे साथ हमारी दुनिया में चलो बेटा। ये दुनिया, यहाँ के लोग तुम्हारे जैसे नहीं है। कब तक यूं छुप छुप कर जिंदगी गुजारोगे? कब तक अपना वजूद, अपनी हकीकत इन इंसानों से छुपाते रहोगे? वो उसे समझाते हुए कहने लगे, क्या आपकी दुनिया में मेरे जैसों के लिए मौत नहीं है, जिनका एक हिस्सा इस दुनिया से है, जिसकी रगों में एक आम और कमज़ोर इंसान का खून दौड़ रहा है? क्या आप और आप जैसों की बका मेरी मौजूदगी से खतरे में नहीं पड़ जाएगी? वो मुझसे हुआ, नहीं, तुम मेरे बेटे हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सबसे ताकतवर हो, जिसके आगे मेरी ताकतें भी माच खा जाएं, उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। मगर इन ताकतों को बरकरार रखने के लिए तुम्हें हमारी दुनिया में हमारे जैसे रहना होगा बेटा। यूं आम इंसानों के जैसे जियोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी ये ताकतें मध्यम पड़ जाएंगी। वो उसे समझाने बल्कि कायल करने का इरादा रखता था। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा, वो बज़िद हुआ। तुम्हारी नानी अभी दुनिया में नहीं है, अब क्यों यहाँ रहना चाहते हो? वो इस जिद्दी के सामने बेबस हुआ। तो आपकी दुनिया में जाकर आप जैसा दरिंदा बन जाओ, वो चिल्ला उठा। मुझे माफ़ कर दो, मगर वही तुम्हारी हकीकत है, जो तुम हो। यूँ तन्हा तुम अपनी बका की जंग जीत नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हारा राज खुल गया, ये आम इंसान तुम्हारे साथ हमारे जैसे दरिंदों से भी ज़्यादा सफाकी से पेश आएंगे, क्योंकि तुम्हें खुद को दरिंदा नहीं बनाना, बल्कि एक आम इंसान बनकर रहना है। पर कभी तुमने सोचा है कि जब तुम्हारे अंदर की फितरी तकाज़े और तुम्हारी तलब, तुम्हारी प्यास बढ़ेगी तो क्या करोगे? तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम सब करते हैं। अपने बका के लिए तुम्हें भी हमारे जैसा बनना पड़ेगा, एक सफ़ाक कातिल और खूनी, एक दरिंदा, एक वैम्पायर। उसने उसे हकीकत का आईना दिखाया था, जिसमें उसे अपना चेहरा बहुत सफ़ाक लगा, मगर वो इन जैसे सफ़ाक नहीं बनना चाहता था। वो एक वैम्पायर का बेटा था, मगर उसको पैदा एक इंसान ने किया था। वो आज तक इंसानी खुराक पर जी रहा था, मगर ये भी सच था कि कुछ वक्त से उसकी प्यास बढ़ रही थी। उसके अंदर एक जलन का एहसास था जो किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, और वो जानता था कि उसकी ये प्यास और ये तलब बस एक चीज़ से मिट सकती थी, और वो था खून। मगर वो कभी इस राह पर चलना नहीं चाहता था, मगर यही उसकी तकदीर थी। उसे ऐसा ही बनाया गया था, और उसे इस हकीकत को तस्लीम करना ही था कि वो एक वैम्पायर है। लेकिन अगर तुम राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हारी इस तलब को शांत करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जैसे मैंने अपनी तलब को काबू में किया है। ये सब तभी मुमकिन है जब तुम मेरे साथ चलोगे। यकीन जानो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। उसे सोचों में गर्द देखकर उसके बाप ने एक और कोशिश की। वो खामोश नज़रों से उसे देखे गया। फिर वो उसको साथ लिए उस जगह आया था जहाँ उनके जैसे हज़ारों की तादाद में थे। उसकी आमद पर सभी ठटके, मगर जल्द ही उसकी ताकतों और उसके बाप की कोशिशों ने उनमें उसका मुकाम पुख्ता कर दिया। वो उन जैसा होकर भी उनसे अलग था। उसकी ताकतें उन सबसे ज़्यादा थीं, और जो चीज़ उसमें उसके बाप जैसी थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा थी, वो था उसका गुस्सा। उसे बाकी वेम्पायर्स की तरह अपने लिए शिकार की तलाश नहीं रहती थी, बल्कि वो इंसानी खुराक पर जी सकता था। हाँ, अपनी ताकतों को बढ़ाने और उन्हें कायम रखने के लिए बाज़ औक़ात उसे शिकार भी करना पड़ता था, मगर वो इंसानों पर हमलावर नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो वो खुद को रोक नहीं पाता था। जल्द ही वो अपने बाप की तरह ही अपने गुरु का सरदार बन गया था, और किसी की निगाहों में खटकने लगा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द इसका एक पार्ट लेकर आ जाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।